2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहाँ बिक रहा है? हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਯੂਥ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੁਵਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਐਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਜਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਸਟਾਲਿਨ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। சனாதனம்னா என்ன? இதுவே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்றதா சனாதனம்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿಯಾಂਕ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿಯಾಂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, जो धर्म असमानता ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। Udayanidhi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as it is. ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। वेणुगोपाल जी, उदयनिधि का जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਐਮਪੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ स्टालिन दे इस बयान ते अपना स्टैंड क्लियर करन नु कहा। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर तोयबा से भी खतरनाक है। टेरर के साथ
हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इनका असली चेहरा जानती है, इनको सही ठिकाने पर पहुंचाएगी। पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता हो, इनको पूरे देश से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश इनको माफ नहीं करेगा। मैं ये इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन से सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, मुझे जवाब चाहिए और देश को जवाब चाहिए कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है वो इंडी अलायंस का और घमंडिया गठबंधन का रणनीति का, राजनीति का हिस्सा है। क्या वह रणनीति बनी है और क्या आपने मुंबई में यह रणनीति बना करके आप उतरे हैं? और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप आने वाले चुनाव में आप सनातन धर्म को समाप्त करने की राजनीति के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? उदयनिधि मारन, उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, सॉरी, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design,
विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। क्या अरविंद केजरीवाल सनातन धर्म को समाप्त करने के स्टालिन के बेटे के बयान के साथ हैं या उनसे किनारा करने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल की चुप्पी मेरी सोच में बहुत ही चिंता पैदा करने वाली है और मैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया से यह अपेक्षा करता हूं कि आज शाम तक इस पे अपनी स्थिति क्लियर करें। नहीं, माफी क्यों मांगेंगे? वो तो राहुल गांधी के चले ही है ना, माफी क्यों मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व करता है वो एक छोटी जाति से आदमी आता है, प्रधानमंत्री हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले सभी गरीब गुरुबा लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, तो छोटे छोटे लोग हैं, वो तो बड़े राजा हैं, वो क्यों माफी मांगेंगे? लेकिन 130 करोड़ की जो जनता है हिंदू धर्म को मानने वाली, सनातन धर्म को मानने वाली, उसके मन में ये बात जरूर चली गई कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो केवल एक चेहरा मात्र है। असली वो एजेंडा जो है, स्पोक्स पर्सन है वो INDAI गठबंधन के। और मुंबई की जो बैठक हुई है अभी, उसमें मुझे लगता है ये जांच का विषय है और भारत सरकार से मेरा मांग भी है कि इसको जांच करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। ये ठीक वही स्थिति है जो 1937 से लेकर 1940 तक इस देश की थी। और उनको वो पैसे जो है, मुझे लगता है कि बाहर से फंडिंग का किसी ने आश्वासन दिया होगा कि आप इस तरह के बयान करोगे, हिंदू धर्म के खिलाफ जाओगे तो हम आपको फंड करेंगे, और उस एजेंडे के तहत ये उदयनिधि स्टालिन का बयान है। And a leader has insulted Sanatan Dharma. I think we all are demanding on behalf of the people of India, on behalf of the people of the capital city, an apology from the concerned minister, and also asking him to withdraw his statement. We are also demanding that the leaders of the new opposition alliance, they should also comment on this. Our chief minister in Delhi, he should also comment on this. He should tell the people of Delhi whether he is siding with this comment or whether he is against this comment. It's shocking and saddening. After our Honorable Prime Minister took charge in 2014, along with the unprecedented growth trajectory, one of the biggest achievements of this government has been the reclamation of a rich civilizational culture, our traditions, our beliefs, and our civilizational ethos. The Sanatan Dharma is the core, it is the very essence that binds our civilizational beliefs and our practices together. Luminaries, including Swami Vivekananda ji, had mentioned several times that the Sanatan Dharma is the eternal truth, the universal truth that is indivisible. In circumstances like this, it is just shocking that one of the major opposition leaders, a alliance partner of the so-called INDIA alliance, Mr. Udayanidhi Stalin, bad-mouthing Sanatan Dharma, equating it to different diseases and saying that it should be eradicated. This shows the perverse mindset of this alliance. It shows the perverse mindset of some of these alliance partners. इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। जिस प्रकार से DMK, जो इंडी अलायंस का हिस्सा है, उसके नेता उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि वो न केवल सनातन धर्म का विरोध करते हैं, बल्कि उसकी तुलना बीमारियों से करते हुए उसको नस्तनाबूद खत्म करने की बात करते हैं। मतलब कि जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है, उसके अंदर आस्था रखने वाले लोगों को एक प्रकार से समाप्त करना है। ये बात जब वो कहते हैं, और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदंबरम भी करते हैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਪਾਏ।
जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं वो किसके खिलाफ है? जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। जो बजरंग बली जी की तुलना योगी आदित्यनाथ जी आदिवासी और दलित से करते हैं, भगवान की भी जाति खोज रहे हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। शिवराज सिंह ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी और अमित शाह की तुलना कर दी बजरंग बली जी से, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। हिंदू धर्म का इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर अपमान कोई कर रहा है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी। ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ सख्त कार्रवाई की जावे। सनातन धर्म जो है आदि धर्म है और वर्तमान में समय है और अंत तक रहेगा। इसमें किसी के क्षमता नहीं है कि इसको समाप्त करे। तो वो जो कह रहे हैं सनातन धर्म समाप्त करने का, तो यह उनके क्षमता नहीं है, न किसी में न क्षमता है। कि सनातन धर्म अखंड है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इसको खत्म करने वाले चले गए, मर गए, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। इनका समूल नाश खत्म हो जाएगा जो सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात करते हैं। और ये भारत में क्या पूरे विश्व में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सनातन धर्म की पैदाइश न हो। वो सब सनातन धर्मी है, उनके हृदय में सनातन धर्म है, सब ऋषियों की संतान है। माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तत्काल उसको जेल में बंद किया जाए। इनकी मानसिक विकृति इतनी बेकार हो चुकी है कि इनका इलाज सिर्फ ईश्वर ही करता है और ऐसे लोगों का संहार भी ईश्वर ही करता है। ये लोग कोरोना काल को भूल चुके हैं और सनातन संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार करके सिर्फ राजनीतिक स्टंट या टीआरपी पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को ईश्वर ही दंड देगा और बहुत जल्द ऐसे लोगों को राजनीतिक हानि जनता वोट के रूप में जवाब देगी। उदयनिधि स्टालिन हमारे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरीके से बताते हैं और इसका विरोध ही नहीं करना चाहते, बल्कि सनातन धर्म को सारी दुनिया से मिटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। मगर चिंताजनक बात यह है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि हमारा भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर है और विश्व गुरु अगर भारत बनता है तो उसके पीछे सनातन धर्म ही होगा।